بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 15۔ دوسری روز صبح ہی صبح باطنیوں نے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجا دیے تھے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے بھی راستے میں طے شدہ لائے عمل کے مطابق اپنے لشکر کی صفیں درست کر لی تھی۔ حملے کی ابتدا باطنیوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ ملک اور نادان باطنی بڑی تیزی کے ساتھ سلطان کے لشکر پر حملہ ور ہو گئے تھے۔ باطنی سلطان کے لشکر پر اس خونریزی، خونخواری، اس جوش اور جذبے سے مختلف آوازیں نکالتے ہوئے حملہ ور ہوئے تھے کہ بانیاس شہر سے باہر میدان جنگ روتے غاروں پر، پرانے ساحل پر بعض گشتیوں کی گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ باطنیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سلطان کو شکست سے دوچار کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان کے حملوں کی گرمی، حدت، ہستی اور ہیر میں ان کی بے خوفناکی چھاتی جا رہی تھی، اور سلطان نے ان کے سامنے اپنے لشکروں کا کچھ اس انداز اور تدبر سے دفاع کیا تھا کہ حملہ ور یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ سلطان سے ٹکرانے کے بعد ان کی ہر نظر بے سود ہو کر رہ گئی ہے۔ سلطان نے ابھی تک اپنی جوابی حملوں یا جارحیت کی ابتدا نہ کی تھی، ابھی تک وہ دفاع پر محدود تھا۔ اس کے باوجود باطنی یہ محسوس کر رہے تھے کہ سلطان کے مقابلے میں ان کے حرف اور معنی کے رشتے منقطع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر اور زور پر آئی تھی، تب امیر سیف الدین نے اچانک اپنی بلند آواز میں لشکر کے اندر 3 بار تکبیر بلند کی۔ شاید سلطان نے راستے میں امیر سیف الدین ترنیتا اور حسام الدین کے ساتھ مل کر جو جنگ کے لائے عمل تیار کیا تھا، اس کے مطابق ہی سیف الدین نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے سلطان کو کوئی اشارہ دے دیا تھا۔ شاید سیف الدین کی طرف سے سلطان کے نام میں پیغام تھا کہ وہ اپنے کسی نئے کام کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ سیف الدین کی تھوڑی ہی دیر بعد اسی کے انداز میں دوسری جانب ترنیتا نے بھی 3 بار تکبیریں بلند کی تھی۔ وہ بھی شاید اپنے خفیہ انداز میں سلطان کو کوئی پیغام دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے بھی ایسی ہی تکبیر بلند کی۔ پھر اس کے بعد ایک انقلاب رونما ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے سلطان حسام الدین کو اپنے ساتھ ملا کر باطنیوں کے لشکر کے سامنے جمع رہا، جبکہ سیف الدین ترنیتائی باطنیوں کے دائیں بائیں پہلو پر ضرب لگانے کے لیے بھوکے شاہینوں کی طرح جھپٹ پڑے تھے۔ نئے انداز میں حملے کی ابتدا امیر سیف الدین نے کی تھی۔ وہ ازلی عداوتوں میں سلگتی گفتگو، ہوٹوں پر کفر کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ سیف الدین کے ساتھ ہی ساتھ امیر ترنیتائی بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ حملہ ور ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جبکہ امیر سیف الدین، امیر ترنیتائی دونوں ہی باطنیوں پر عذاب کی طرح نزول کرنے لگے تھے، اپنے لشکر کے وسط میں سلطان رکن الدین بھی حرکت میں آیا۔ ایک بار اس نے عجیب سی عاجزی اور انکساری میں آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی گردن اپنے گھوڑے کی زین کے آہنی پر جھک گئی تھی اور وہ بڑی عاجزی سے کہہ رہا تھا، میرے اللہ، تیرے اسم ہی سے میرا کمال جرأت مندی، تیرے اسم ہی سے میرا جمال سپہگیری ہے۔ میرے اللہ، تو ہی کشتیوں کے پاسبانوں کو پوشیدہ قوتیں عطا کرتا ہے، تو ہی فاصلوں میں قربتوں کو شدت اور موسموں کے انقلاب کو ساعتوں میں نمٹتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دینا اور مجھے دشمن کے سامنے جھکنے مت دینا۔ دعا مانگنے کے بعد سلطان سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، تاہم اس کی چھاتی تن گئی تھی۔ لگتا تو دعا مانگنے کے بعد اس کے سارے رنج و ملال دور ہو گئے ہیں اور عمر کی ساری خوشیاں اس کے چہرے پر رقص کر گئی ہو۔ پھر سلطان حرکت میں آیا اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہ طوفانوں کی بیداری، یادوں کے شعلوں، رگ اور بے کی پابند کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ باطنیوں کے لشکر کے وسطی حصے پر خود سلطان رکن الدین اور حسام الدین قہر بن کر نازل ہو رہے تھے، جبکہ دائیں بائیں پہلو پر امیر سیف الدین، امیر ترنیتائی دونوں ہی نہ رکنے والے عذاب بن کر نزول کرتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بانیاس شہر سے باہر میدان جنگ کھولتے سمندر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جسم اور روح کے رشتے کٹنے لگے تھے۔ سلطان رکن الدین اور حسام الدین ترنیتائی اور سیف الدین نے جب دیکھا کہ اگلی صفیں کی تباہی اور بربادی کے بعد باطنی اپنی پچھلی صفوں کو آگے لاتے ہوئے لشکر کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ شدت اپنے حملوں میں پیدا کر لی تھی اور اپنے سامنے آنے والے ہر باطنی کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ باطنیوں نے جب دیکھا کہ سلطان رکن الدین اور اس کے سالاروں کی سرکردگی میں جو سیلاب اور عذاب ان پر طاری ہونے والا ہے،
वो किसी भी सोच रुकने वाला नहीं तो मैदान जंग छोड़कर भाग खड़े हुए और अपने किले बानियास की तरफ भागे। लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन से यूं बचकर भागना भी कोई आसान काम न था। सुल्तान ने अपने पड़ाव की हिफाजत पर हुसामुद्दीन को छोड़ा, जबकि सैफुद्दीन और तुर्निताई को लेकर वो मैदान जंग से भागते बातिनियों के ताक़ुब में लग गया था। बातिनी जब सर पर पांव रखकर भागते हुए बानियास के किले में दाखिल हुए तो उनके पीछे पीछे सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन और तुर्निताई भी अपने हिस्से के लश्करों के साथ शहर में दाखिल हो गए। एक बार फिर बानियास शहर के अंदर खौफनाक रान पड़ा। बातिनियों को उम्मीद थी कि शहर के लोग भी जंग में उनका साथ देंगे, लिहाजा वो कामयाब रहेंगे, इसलिए कि उनके आम आदमी भी बेहतरीन जंगजू की हैसियत रखते थे। लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन, अमीर सैफुद्दीन और तुर्निताई के सामने बातिनियों की कोई तदबीर कामयाब न हुई। उनकी हर कोशिश, उनका हर जतन नामुराद रहा और उन पर पूरी तरह छाते हुए सुल्तान और उसके लश्करों ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। घुमसान की जंग के बाद शहर के अंदर भी सुल्तान ने बातिनियों को बदतरीन शिकस्त दी। उसके बाद अपने लश्कर को चारों तरफ फैलाते हुए सुल्तान ने बानियास शहर पर बातिनियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। यूं बानियास शहर से किसी भी बातिनी को सुल्तान ने जान बचाकर भागने का मौका न दिया और सारे बातिनियों को तहे तेग करने के बाद बानियास शहर और किले पर सुल्तान का कब्जा हो गया था। बानियास पर कब्जा होने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने बातिनियों को दम नहीं लेने दिया। यके बादी दिगर वो उनके दिगर किलों मसीयात, कहफ और ख्वाबी पर भी हमलावर हुए। उन किलों और शहरों में भी जो बातिनी हिफाजत पर मामूर थे, सुल्तान रुकनुद्दीन ने बेपनाह ताकत और कुव्वत का मुजाहरा करते हुए उन शहरों और किलों की फसिलों को गिरा मारा। अपने लश्कर के साथ सुल्तान उन किलों और शहरों में भी दाखिल हुआ और उनके अंदर भी जिस कदर बातिनी ने पनाह ले रखी थी उनका भी सुल्तान ने खात्मा करके रख दिया। उन इलाकों के हाथों अर्ज़ शाम में बानियास, मसाद, कहफ और ख्वाबी नाम के जो बातिनियों के किले बचे थे, सुल्तान इन्हें निस्त नाबूद करके रख दिया था। यूं एक तरह से हसन बिन सबा के जानशीन फिदाओं का खात्मा होकर रह गया था। बातिनियों का मुकम्मल तौर पर सफाया और खात्मा करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बातिनियों के इलाके में एक जगह पड़ाव कर लिया था। फिर सुल्तान ने अपने सालारों को अपने खीमे में तलब किया। जब सारे सालार सुल्तान के खीमे में जमा हो गए तब सुल्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, शुमाल के इलाकों की तरफ आने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि बातिनियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया जाए और तुम देखते हो अपने काम की में हम मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे हैं। अब जबकि बातिनियों की तरफ से हमें कोई खतरा नहीं, लश्कर को सिर्फ 1-2 रोज तक यहाँ सुस्ताने का मौका फराहम किया जाएगा। उसके बाद लश्कर वापस काहिरा की तरफ कूच करेगा। मैं तुम पर यह भी इंकिशाफ करूं कि गुज़िश्ता दिनों में मैंने एक अपने कासिद को काहिरा की तरफ भिजवा दिया है। मैं चाहता हूं कि काहिरा पहुंचकर तुर्निताई की शादी का एहतमाम करो। तुम सब लोग जानते हो कि तुर्निताई को मैं अपने बेटों की तरह रखा है और उसकी शादी का एहतमाम भी मैं अपना बेटा समझ कर ही करूंगा। तुम सबको ये भी इल्म होगा कि तुर्निताई की शादी का एहतमाम काहिरा की यहूदी रईस इलियास की नवासी रुदा से तय हो चुका है। मैंने जो कासिद काहिरा की तरफ भिजवाया है उसके हाथ मैंने इलियास और रुदा के बाप आमूस को यह पैगाम भिजवाया है कि चंद रोज तक मैं अपने लश्कर के साथ काहिरा पहुंचूंगा। मेरे काहिरा पहुंचने से पहले वो रुदा और तुर्निताई की शादी का एहतमाम और इंतजाम करके रखे। मैंने उन पर यह बात भी वाज़ेह कर दी कि तुर्निताई की शादी के सारे अखराजात और एहतमाम और इंतजामात मेरी तरफ से होंगे। शादी का एहतमाम काहिरा शहर से बाहर लश्करगाह में किया जाएगा और तुर्निताई की शादी में हमारा सारा लश्कर एक तरह से बारातियों की हैसियत से शामिल होगा। मैं चाहता हूं कि किसी लश्करी को भी ये शिकवा ना रहे कि उसे तुर्निताई की शादी में शरीक ना किया गया। सुल्तान रुकनुद्दीन अभी अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे थे और अभी कुछ कहना चाहते थे कि इस मौके पर उनका चौकीदार खीमे में दाखिल हुआ और सुल्तान को ताज़ीम पेश करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारे जासूस दस्तों के 2 मुखबिर अभी लश्करगाह में दाखिल हुए हैं और फिलफौर आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरे ख्याल में कोई इंतहाई अहम खबर लेकर आपके पास आए हैं। अपने चौकीदार के अल्फाज पर सुल्तान रुकनुद्दीन चौक सा पड़ा था। वहां बैठे हुए सालार भी मुतफक्किर से दिखाई देने लगे थे। फिर सुल्तान की आवाज खीमे में गूंजी, उन दोनों जासूसों को फौरन खीमे में लेकर आओ ताकि मैं जानूं वो किस सिम से आए हैं और हमारे लिए क्या खबर रखते हैं। इसके साथ ही चौकीदार मुड़ा और खीमे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद सुल्तान की तिलागर दस्तों के 2 मुखबिर खीमे में दाखिल हुए और सुल्तान के सामने आ खड़े हुए। सुल्तान ने उन्हें मुखातिब करते हुए पूछना शुरू किया, मेरे मेहरबानो, तुम किस सिम से आए हो और हमारे लिए क्या खबर रखते हो। इस पर एक मुखबिर बोल पड़ा, सुल्तान, हम मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ मंगोलों का हुक्मरान और याकूब खान का बेटा अबका खान बड़े जोर शोर से जंग की तैयारियां करने में मसरूफ है। दरअसल मंगोलों को इस बात का बड़ा दुख और कलक है कि हमने बहरे रूम के किनारे किनारे बड़े बड़े नसरानी किलों को जेर कर लिया है।
اور باقی بچنے والے چھوٹے قلعوں نے ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا ہے۔ دراصل ہلاکو خان کی اس طرح اس کے بیٹے ابقا خان کی بیوی بھی نصرانی ہے اور برابر ابقا خان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتی رہتی ہے۔ ابقا خان کی بیوی قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی شہزادی ہے اور ہر صورت میں مسلمانوں سے انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے ابقا خان کو اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کرنے اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے دوارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سلطان جس قدر جنگی تیاریاں جاری ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت جلد ابقا خان ہمارے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ سلطان نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، پھر مخبروں کو اس نے مخاطب کیا، میں اس انکشاف سے زیادہ متفق نہیں کہ ہلاکو کا بیٹا ابقا خان ہمارے خلاف جنگی تیاری میں مصروف ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے ہلاکو خان کو شکست دے سکتے ہیں تو ابقا خان کا انجام بھی اس کے باپ سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہلاکو خان کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے جو موجودہ حکمران ابقا خان کا بھائی ہے، کہتے ہیں اس کا نام تکودار اوغان ہے۔ اب اس نے اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد رکھ لیا ہے۔ اس سے متعلق بھی تم کچھ خبر رکھتے ہو کہ اس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہاں تک منگولوں کے اندر اپنی گرفت مضبوط کی ہے؟ سلطان، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہم تیکودار اوغان یعنی احمد سے بھی مل کے آ رہے ہیں۔ تیکودار اوغان ابقا خان کا چھوٹا بھائی ہے اور اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن طاقت اور قوت کے لحاظ سے وہ ابھی اس قابل نہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اپنے بڑے اور حکمران بھائی ابقا خان کے خلاف کھل کر بغاوت کر سکے۔ تاہم سلطان محترم، اندر ہی اندر یہ نو مسلم منگول احمد اپنی طاقت اور قوت کو استحکام بخشتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے اس کی پکار پر منگول اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ سلطان، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ عالم اسلام کے دو بہترین عالم اس وقت منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ میں احمد کے ہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ دو علماء میں سے ایک کا نام علامہ قطب الدین شیرازی اور دوسرا اتابک بہاؤالدین ہے۔ یہ دن رات اپنے نائبوں کے ساتھ منگولوں کے اندر اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہے اور ان کی وجہ سے ان گنت منگول اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سلطان محترم، اسلام قبول کرنے والے یہ منگول ابقا خان کے بجائے اس کے چھوٹے بھائی احمد کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر رہے ہیں۔ سلطان محترم، جس رفتار سے احمد منگولوں کے اندر اپنی طاقت اور قوت بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ جاری ہی رہی تو ہمارے خیال میں کہ عنقریب وہ اعلانیہ اپنے بڑے بھائی ابقا کے خلاف بغاوت کر دے گا، جو نصرانیوں کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے در پہ ہے۔ لیکن اگر مستقبل قریب میں ابقا خان کے خلاف ہماری کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں احمد ابھی فی الحال اس حالت میں نہیں کہ کھل کر ابقا کے سامنے آ سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ جاسوس خاموش ہو گیا تھا۔ سلطان نے تھوڑی دیر تک نگاہیں جھکائی، کچھ سوچتا رہا، پھر ہلکا سا تبسم اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوا۔ ساتھ ہی خیمے میں سلطان کی آواز بھی گونجی، میرے ساتھیوں، میرے رفیق کو آنے والے جاسوس، لگتا ہے تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے۔ جس وقت ہلاکو خان نے مسلمان علاقوں کو تاراج کرتے ہوئے فلسطین اور مصر کا رخ کیا تھا تو جانتے ہوں گے اس وقت ہلاکو کا چاچا زاد بھائی برقائی خان اسلام قبول کر چکا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد روسی علاقوں میں اس نے بہت بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی تھی اور اسے اپنے ساتھ ملا کر ہم نے ہلاکو خان کو وہ شکست دی جو منگولوں کے لیے ایک عبرت بن گئی تھی۔ اب حالات پھر اسی دوراہے پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ابقا خان اگر ہمارے پر حملہ اور ہونے کے در پہ ہے تو منگولوں کے اندر اس کا بھائی احمد اسلام قبول کرنے کے بعد ایک طاقت اور قوت بن کر اٹھ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ابقا خان سے ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ احمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بھائی ابقا خان کے خلاف ہماری مدد کرے گا اور ہم اگر خدا نے چاہا تو ارض شام سے بھی منگولوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس نئی خبر کے بعد اب میں یہاں سے قاہرہ کی طرف کوچ کرنے کے اپنے لائے عمل کو تبدیل کرتا ہوں۔ سلطان رکن الدین یہی تک کہنے پایا تھا کہ چوکیدار ایک بار پھر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تہہ کیا ہوا ایک کاغذ تھا۔ سلطان کے قریب آیا اور کاغذ اس نے سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سلطان، نامہ پر کبوتروں کے ذریعے سے قاہرہ سے پیغام ابھی ابھی وصول ہوا ہے۔ سلطان نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ کاغذ لے لیا۔ چوکیدار باہر نکل گیا۔ سلطان تھوڑی دیر تک خط کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ پھر اس نے تہہ کر کے کاغذ کو اپنے قریب ہی رکھ لیا۔ اس کے بعد اس کی آواز پھر خیمے میں گونج گئی تھی، میرے سالاروں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ خط قاہرہ سے آیا ہے اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ نوبہ کی عیسائی حکمران ڈیوٹ نے ہماری مملکت پر حملہ کر دیا ہے اور ہمارے علاقوں پر حملہ ور ہوتے ہوئے اس نے دور تک تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کر دیا ہے۔ دراصل نوبہ کے حکمران ڈیوٹ کو بحر روم کے ساتھ شہروں کے نصرانیوں نے ہمارے ہاتھوں پائے در پہ شکست اٹھانے کے بعد اس وقت ہی مدد کے لیے پکارا تھا جس وقت انہوں نے اپنے کچھ پادری پائے اعظم کلمنٹ کے پاس مدد کے لیے روانہ کیے تھے، لیکن نوبہ کا عیسائی حکمران فی الفور ہمارے خلاف حرکت میں نہ آیا بلکہ کچھ عرصہ اپنی جنگی تیاری میں مصروف رہا۔
उस दौरान तक पाए आजम क्लेमेंट के कहने पर फ्रांसीसी और इंग्लिस्तान के लश्कर हमारे खिलाफ हरकत में आए, लेकिन नाकाम और नामुराद लौट गए। अब नौबा का हुक्मरान ट्वीट उठाया है और वो हमसे इस बात का इंतकाम लेने पर तुला हुआ है कि हमने बहरी रूम के साहिली नसरानी किलों को क्यों अपने सामने जेर और मगलूब किया। लगता है नौबा के नसरानी हुक्मरान ड्यूट के भी दिन गिने जा चुके हैं। सुनो रफीकान दरीना, अगर नौबा का हुक्मरान ड्यूट हमारी जान का आजमा बनाना चाहता है और हमारे साथ नोक के सना का रक्स करने का ख्वाहिशमंद है तो ये कोई बड़ी और अनोखी बात नहीं। इससे पहले बड़े बड़े सरकश अपने दिल में सहराओं का सा इस्तराब लेकर हमारे खिलाफ आ चुके हैं। सुनो रफीको, इस ड्यूट से पहले कभी मंगोलों, कभी नसरानियों, कभी बातिनियों की सूरत में बड़े बड़े सुरमा वक्त के खलीज में हमारे सामने आते चले गए हैं। हिलाकू जो अपनी दानिश में नाकाबिल शिकस्त ख्याल किया जाता था और बड़े बड़े हुक्मरान उससे खौफजदा रहते थे, हमने जिस्म में छुपती रूह को डसने के गमों की तरह उससे हमला कर दिया था। सुनो मेरे अजीजों, ये खबर आने से पहले मैं इरादा कर चुका था कि अब अपने सारे लश्कर के साथ काहिरा जाऊं और वहां तुनिता की शादी का एहतमाम करूं, लेकिन अब मैं अपने इन इरादों में तब्दील करता हूं। यहाँ से हम जुनूब की तरफ पेशकदमी करेंगे, सूसा शहर में एक रोज क़याम करेंगे। हुसामुद्दीन को उसके हिस्से के लश्कर के साथ सूसा शहर में मुतय्यन किया जाएगा और अपने जासूस के जरिए मशहूर कर दिया जाएगा। सूसा शहर में तुर्निताई और हुसामुद्दीन दोनों ने अपने अपने हिस्सों के लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया है ताकि मंगोलों के अचानक हमले से निपटा जा सके। सुनो मेरे साथियों, तुर्निताई का नाम मंगोलों, बातिनों, नसरानियों में नहीं है, हमारे दूसरे दुश्मनों ने खास जानना पहचाना है और ये नाम उन पर हैबत तारीख करने के लिए काफी है। मंगोल जब सुनेंगे कि तुर्निताई और हुसामुद्दीन ने उनसे निपटने के लिए सूसा में अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया हुआ है तो मेरे ख्याल में हम पर हमलावर होने की पहल करके हिमाकत का सबूत नहीं देंगे। जब हकीकत यह होगी कि हुसामुद्दीन को सूसा में छोड़कर मैं, सैफुद्दीन और तुर्निताई तीनों काहिरा जाएंगे, काहिरा में हम क़याम नहीं करेंगे बल्कि वहां से सामान, रसद और खुराक के ज़खायर अपने साथ लेकर फौरन नोबा का रुख करेंगे और ड्यूट के सामने पड़ाव करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ड्यूट को बदतरीन शिकस्त देकर फारिग हो जाएंगे। उसके बाद एक बार मैं फिर काहिरा आऊंगा। काहिरा में क़याम के दौरान तुर्निताई की शादी का एहतमाम करूंगा। हुसामुद्दीन, मेरे बेटे, मुझे अफसोस है कि तुम इस शादी में शिरकत नहीं कर सकोगे। तुर्निताई की शादी के चंद रोज बाद मैं फिर काहिरा से कूच करूंगा, सूसा में आऊंगा। सूसा में हुसामुद्दीन को अपने साथ मिलाने के बाद फिर हम मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा का रुख करेंगे और कब्ल इसके कि हिलाकू का बेटा अबका खान हम पर हमलावर होने में पहल करे, हम खुद उस पर पहल करके उसकी ताकत और कुव्वत को कुचल कर रख देंगे। सुनो, तुम में से अगर मेरे सलाह अमल के खिलाफ किसी को कोई इतराज हो तो खड़े होकर बोले। सुल्तान थोड़ी देर तक रुक कर अपने सालारों पर निगाह जमाए रहे, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह पर ना खड़ा हुआ। ये उस बात की दलील थी कि सब सुल्तान हुक्मुद्दीन की इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं। इस बार सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार तासुरात नमदार हुए। उसके बाद सुल्तान की आवाज़ खीमे में फिर सुनाई दी। मेरे अजीज और मेरे रफीकों, अगर ये बात है तो फिर सुनो, कल फजर की नमाज के बाद लश्कर सुबह का खाना खाने के बाद यहाँ से कूच करेगा और हुसामुद्दीन भी हमारे साथ होगा। हुसामुद्दीन सूसा में पड़ाव करेगा जबकि हम बाकी लश्कर के साथ रुके बगैर बड़ी तेजी से काहिरा का रुख करेंगे और फिर वहां से नोबा की तरफ कूच कर जाएंगे। अब तुम सब लोग कल के लिए अपने लश्कर की कूच की तैयारियां करो। इसके साथ ही सुल्तान के हुक्म पर उसके सारे सालार सुल्तान के खीमे से निकल गए थे। अगले रोज अंधेरे मुंह फजर की नमाज अदा करने के लिए तुर्निताई जब उठकर अपने खीमे से बाहर आया तो दंग रह गया। चांदनी रात में उसके खीमे के बाहर 3 लाशें पड़ी थी और उसके खीमे से इर्द गिर्द पहरा देने वाले चौकस और चौकन्ने थे। तुर्निताई पहरा देने वालों के करीब आया और उन्हें मुखातिब करके पूछा, कौन लोग हैं जो मरे पड़े हैं? इस पर एक मुहाफिज बोल पड़ा, अमीर, रात की तारीकी में 3 अशखास हमारे लश्करियों और मुसलमानों की भेष में हमारे लश्कर में दाखिल हुए और आप पर हमला करके आपका खात्मा करने की कोशिश की थी। ये तीनों आप पर हमलावर होने के लिए आपके खीमे से दूर ही थे कि उन तीनों को ललकारते हुए हमने उनसे मुतालिक जब दरियाफ्त किया तो ये हमारे सवाल का जवाब देने के बजाय खीमे की तरफ भाग खड़े हुए। इनके इस हरकत से हम चौकस और चौकन्ने थे और ये करीब आने पर उन पर हमलावर होना चाहते थे कि रात की तारीकी में एक इनकलाब रूनुमा हुआ। अमीर मोहतरम, रात की तारीकी में खीमों की ओर से उन तीनों हमलावरों पर ऐसी तीर अंदाजी की गई कि हम तक पहुंचने से कबल ही ये तीनों छेद कर जमीन पर गिर पड़े और हिलाक हो गए। इसके बाद एक तीर खीमे के बिल्कुल करीब मारा गया। उस तीर के साथ कपड़े में बंधा हुआ एक कागज है। मेरे ख्याल में इसमें आप या किसी और के नाम पैगाम है। अपने मुहाफिज के इस इंकिशाफ पर तुर्निताई चौंक सा पड़ा, फिर दोबारा बोल पड़ा। वो तीर जिसके साथ कपड़े में लिपटा हुआ पैगाम था वो कहाँ है? इस पर एक मुहाफिज एक तरफ गया और वो तीर ले आया और वो तीर उसने तुर्निताई को थमाते हुए फिर इंकिशाफ किया। अमीर मोहतरम, वो पैगाम वैसे का वैसा ही कपड़े में लपटा हुआ है, तीर के साथ बंधा हुआ है।
हमने उसे इस एहतियात से नहीं खोला कि शायद ये कोई अहम नोयत का पैगाम आपके नाम हो, लिहाजा पैगाम वैसे का वैसा ही हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। तो निताई ने जल्दी जल्दी उस पतीले से कपड़े को खोला जो तीर के साथ बंधा हुआ था। फिर काठी की सूरत में कपड़े के अंदर जो पैगाम था वो निकाला। वो तह किया हुआ एक कागज था। फिजाओं में चूंकि अभी तक तारीकी फैली हुई थी, लिहाजा तो निताई अपने खीमे के अंदर चला गया। खीमे में जलती मशगल की रोशनी में उसने कागज की तह खुली और पढ़ना शुरू किया। वो खत किसी लड़की की तरफ से था और लिखा गया था, अमीर तो निताई, जो लोग आप पर हमलावर होना चाहते हैं, आपकी जान के दर पे हैं और आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनमें से अक्सर को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। अब उनमें से सिर्फ 5 बाकी बचते हैं। अगर हालात ने मेरा साथ दिया तो मैं इन 5 को भी मौत के घाट उतार कर आपको आपके दुश्मनों से महफूज कर दूंगी। यकीनन आप जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक बेबस, मजबूर, लाचार लड़की हूँ और आपकी मदद, आपकी हिफाजत करने की पाबंद और ख्वार हूँ। तो निताई थोड़ी देर तक खत के इन अल्फाज को गौर से देखता रहा, साथ ही साथ वो अजीब से अंदाज में सोचता भी जा रहा था। फिर आप तो निताई बोल उठा, मैं नहीं जानता तू कौन है और क्यों मेरी हिफाजत करना चाहती है और किसने तुझे मेरी हिफाजत का पाबंद और खोगर बना रखा है, लेकिन तू वही है जिसने सूसा से बाहर मुझ पर हमलावर होने वाले बातिलों पर तीरंदाजी की थी और फिर मेरे देखते ही देखते चट्टानों की ओर से निकलकर घोड़े पर सवार होकर भाग गई थी। काश मैं जान सकता तू कौन है। काश मुझे इल्म हो जाता कि तू किन सरजमीनों की तरफ से आती है, कहाँ चली जाती है। काश मैं ये भी जान सकता कि तेरा नाम क्या है, तेरा मुझसे क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है, क्या राब्ता और क्या ज़वाबित है और मेरी किस नेकी के सिले में तू आपसे आप मेरी मुहाफिज बनकर अपने आप को खतरे में डाल रही है। यहाँ तक कहने के बाद तू निताई खामोश हो गया था। फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ कागज तह करके अपने लिबास में महफूज कर दिया। उसके बाद वो फजर की नमाज अदा करने के लिए अपने खीमे से निकल गया था। उसी रोज सुबह के खाने के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ काहिरा की तरफ कूच किया था। रास्ते में हुसामुद्दीन को उसके लश्कर के साथ सूसा में छोड़कर सुल्तान बाकी लश्कर के साथ बड़ी तेजी से काहिरा का रुख कर रहा था। एक रोज इलियास सुबह ही सुबह अपने हवेली में दाखिल हुआ। दीवान खाने में उस वक्त आमोज, रूदा, समीर और सफ्तुना बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। वो चारों भी किसी कदर संजीदा दिखाई दे रहे थे। इलियास बिखरा बिखरा सा दीवान खाने में दाखिल हुआ और आमोज के करीब ही एक नशिस्त पर बैठ गया। उसके बैठने के थोड़ी ही देर बाद आमोज ने उसे मुखातिब किया, बुजुर्ग इलियास, जैसा कि गुज़िश्ता शाम आपने मुझ पर इंकिशाफ किया था कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ आधी रात के लगभग काहिरा में दाखिल होंगे, तो मुझे उम्मीद थी कि सुल्तान के साथ तुनिताई भी काहिरा में दाखिल होगा। लिहाजा आज सुबह सुबह मैं तुनिताई की हवेली में गया था। मैं उसे मिलना चाहता था और फिर उसे अपने साथ यहाँ लाना चाहता था, इसलिए कि रुदा की ख्वाहिश थी। लेकिन हवेली में पहुंचकर मुझे मायूसी हुई। मेरे मोहतरम, हवेली में इस वक्त सिर्फ तुनिताई का खादिम और उसकी बीवी है, तुनिताई नहीं है। मैंने जब उन दोनों मियाँ बीवी से तुनिताई से मुतालिक पूछा तो उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार कर दिया। लिहाजा मैं फिक्रमंद और परेशान सा वापस घर आ गया हूँ। आपको तुनिताई से मुतालिक कोई खबर मिली है? इस पर इलियास ने झुकी हुई गर्दन सीधी की और कहने लगा, आमोज मेरे बेटे, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। तुनिताई वाकई अपनी हवेली में नहीं होगा और ना ही उसे होना चाहिए था। देख आमोज, नौबा की ईसाई हुक्मरान ट्यूट ने सुल्तान की ममलिकत पर हमला कर दिया है और सरहदी इलाकों को इसने बुरी तरह पामाल और बर्बाद करना शुरू कर दिया है। ये खबर सुल्तान को बातिलों का किला कम करने के बाद मिली थी। लिहाजा नौबा के हुक्मरान ट्यूट से निपटने के लिए सुल्तान ने शुमाल से कूच किया। वो यकीनन आधी रात को काहिरा में दाखिल हुए, लेकिन सुल्तान ने अपने कैसर में नहीं गए, ना ही तुनिताई अपनी हवेली में आया। सैफुद्दीन और दूसरे सालार भी अपने घरों को नहीं गए, बल्कि पूरा का पूरा लश्कर शहर से बाहर मुस्तकीर की तरफ चला गया था। वहां से सुल्तान ने अपने लिए खुराक और हथियारों के जखायर हासिल किए। फिर फजर की नमाज काहिरा शहर से बाहर अपने लश्करगाह में अदा करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन अपने लश्कर के साथ नौबाग की तरफ कूच कर चुका है। अमीर तुनिताई सैफुद्दीन भी उनके साथ है। लिहाजा जब सुबह ही सुबह तुम तुनिताई की हवेली में गए तो यकीनन हवेली में तुनिताई को नहीं होना चाहिए था। कहते हैं दिल की बस्ती भी अजीब बस्ती होती है। इलियास के अल्फाज ने रुदा की दिल की बस्ती पर भी अजीब असर किया था। इस इंकिशाफ से लगता था उस लमसन जुनून फेज से दो चार कर दिया हो। अमीर तुनिताई का यूं बताए बगैर और मिले बगैर काहिरा से नौबा की तरफ चले जाने के इंकिशाफ ने रुदा बेचारी को बड़ा परेशान कर दिया था। कमरे में थोड़ी देर तक खामोशी रही। आमोज बेचारा बड़े गौर से रुदा को लम्हा बलम्हा बदलती हालत को अफसुर्दगी और परेशानी से देख रहा था। उसी लम्हे दीवान खाने में बूढ़े इलियास की आवाज गूंज गई, सुनो मेरे बच्चों, एक मुजाहिद की जिंदगी भी अजीब जिंदगी है। कभी वो साहिल के निशान नाखजा और मंज धारों से वाकिफ नाजीब बनकर अपनी कौम के सामने आता है, दम बदम फैलता, पेम पेम बिखरता, किरा किरा बन जाता है। कभी ऐसे मुजाहिद डूबती कश्ती में तैरने लगते हैं
मुजाहिद की जिंदगी अजीब जिंदगी होती है। मेरे बच्चों, तुनिताई भी एक मुजाहिद है। उसकी जिंदगी में दिलकशी भी है, अफसरदगी भी है, बहार भी है, खिजां भी है। वो चूंकि अपने आप को कौम के लिए वक्फ कर चुका है, लिहाजा अपनी ममलिकत, अपनी कौम की पुकार पर वो अपने हर जाती काम को तरजीह दे सकता है। यह हालत सिर्फ तुनिताई की ही नहीं, सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन और दूसरे सालारों की भी है। मैं तुम पर यह इंकिशाफ भी कर दूं कि अपने लश्कर के साथ काहिरा शहर में दाखिल होने के बाद सुल्तान अपने केसर में नहीं गए, ना ही वो अपनी बीवी बच्चों से मिले। अमीर सैफुद्दीन और दूसरे सालारों ने भी ऐसा किया। तो निताई भी अपनी हवेली में नहीं गया, बल्कि रात का आखिरी हिस्सा उन्होंने लश्करगाह में अपनी तैयारी में गुजारा और सुबह की नमाज के बाद वो अपने दुश्मन की तरफ कूच कर गए। इस सिलसिले में हमें तो निताई से कोई गिलाज, कोई शिकवा नहीं। जो कुछ उसने किया उसकी कौम की मांग, उसकी मनसूब की जरूरत थी। यहाँ तक कहने के बाद उलियास जब खामोश हुआ तब आमोज बोल पड़ा। बुजुर्ग उलियास, हमने तो रुदा और तुनिताई की शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और अपने सारे जानने वालों और अजीज व अकारीब को भी इसकी इत्तला कर दी थी। अब जब हमें इस तकरीब को इल्तिवा में डालना पड़ेगा तो क्या सब लोगों की तरफ से हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? उलियास ने झट जवाब दिया, आमोज, मैं तुम्हारी गुफ्तगू से इत्तिफाक करता हूँ। हमें कोई शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब हम लोगों को इत्तला दी गई कि रुदा और तुनिता की शादी को इस वजह से इल्तिवा में डाल दिया गया कि नौबा के हुक्मरान ने ममलिकत की सरहदों पर हमला किया है और सुल्तान और तुनिता नौबा के हुक्मरान दूर से निपटने के लिए जा चुके हैं, इसी बिना पर शादी को इल्तिवा में डाल दिया गया है। तो मेरी बात लिख रखना, काहिरा शहर में जिस कदर हमारे जानने वाले वाकिफ है, जिनको हमने इस तकरीब में मदऊ कर रखा है, उनमें से कोई भी ना तुमसे गिला करेगा, ना कोई शिकवा, और ना ही इस इल्तिवा पर कोई इतराज होगा, बल्कि वो खुशी और तफाखुर का महसूस करेंगे कि अमीर तुनिता ने अपनी जाती काम पर कौम और मिल्लत की मांग को तरजीह दी है। अपने नाना उलियास की इस गुफ्तगू से रुदा ने अपने आप को किस कदर संभाल लिया था। फिर वो अपने बाप आमोज को मुखातिब करके कहने लगे, ऐ मेरे बाप मुजाहिद, किरणों की बागें थामे धरती की रखवाली और जमीन की हिफाजत पर मामूल होता है, वो जमीन का पासबान होते हैं। मुजाहिद अपनी मिल्लत और अपनी कौम के दुश्मनों के लिए फिजाए आतिश में मुनकिराने एहतराम के लिए तेज बेनियाम होते हैं। रुदा की इस बदली हुई हालत पर उसका बाप आमोज भी किस कदर खुश और पुरसुकून हो गया था। फिर वो बोल पड़ा, रुदा मेरी बेटी, अगर तेरे ये ख्याल है तो सुन रखो, मुझे भी तुनिता से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। मैं तो तुम्हारी हालत देखते हुए शिकवा शिकायत करने लगा था, वरना कसम मूसा और दाऊद की अमीर तुनिता ने जो कदम उठाया है उसके मनसब का यही तकाजा था और उसने यकीनन इन तकाजों को पूरा करके एक अच्छा कदम उठाया है। देख बेटी, अब जबकि सारे गिले शिकवे जाते रहे और कोई हमारे माहौल में गलीब फहमी का धुंधुल नहीं रही, तो मैं अब तुमसे ये कहता हूँ कि भूख लगी है, उठो खाना लाओ, खाना खाकर हम तीनों दुकान की तरफ जाएंगे। आमोज की इस गुफ्तगू पर रुदा मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई थी। फिर वो कहने लगी, मैं अभी खाना तैयार कर लाती हूँ। सफ्तुना भी इसके साथ बाहर निकल गई थी, जबकि उलियास, आमोज और समीर दीवान खाने में ही बैठकर बाहम गुफ्तगू करने लगे थे। दिन अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से सफर करते हुए अपनी सल्तनत के जुनूबी सरहदों के अंदर उस जगह जा पहुंचा था जहां नौबा का नसरानी हुक्मरान ड्यूट अपनी कार्रवाई में मसरूफ था। ड्यूट को जब इल्म हुआ कि मुसलमानों का सुल्तान रुकनुद्दीन एक लश्कर लेकर उसकी सरगोबी के लिए जुनूब की तरफ सफर कर रहा है, उसने सुल्तान रुकनुद्दीन की सल्तनत के एक सहराई हिस्से में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। सुल्तान के जासूस दस्ते और मुखबिर भी नौबा के नसरानी हुक्मरान ड्यूट के मुतालिक लम्हा ब लम्हा की मालूमात फराहम कर रहे थे। लिहाजा सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ ड्यूट के सामने आने में ताखिर न की और जिस जगह ड्यूट अपने लश्कर के साथ खीमजन था, सुल्तान ने भी उसके सामने आकर पड़ाव कर लिया। सहरा के अंदर 2 दिन तक दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। ड्यूट न जाने किन खदशात के तहत खुद जंग के लिए सफ़ें दुरुस्त करने की इब्तिदा नहीं करना चाहता था और दूसरी तरफ सुल्तान रुकनुद्दीन में खामोश था, इसलिए कि वो जंग की इब्तिदा से पहले थके मानदे अपने लश्करियों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मुहैया करना चाहता था। फिर तीसरे रोज जब नौबा के हुक्मरान ड्यूट ने जंग की इब्तिदा करने के लिए अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करनी शुरू की, तो सुल्तान भी अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने के बाद उसके सामने सफ आरा हो गया। सुल्तान ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा और वो लश्कर के उसी हिस्से में रहा। दाएं जानिब अमीर सैफुद्दीन को उसके लश्कर के हिस्से के लश्कर के साथ रखा गया था और बाएं पहलू पर तुनिताई को उसके तहत काम करने वाले लश्कर के साथ मुकर किया गया था। इस तरह अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन अपने घोड़े पर सवार दुश्मन की तरफ से किसी रद्द अमल का इंतजार करने लगा था। दूसरी जानिब नौबा के हुक्मरान ड्यूट के लश्कर में अभी तक एक जुनून जैसा आलम था। वो बड़े जोर जोर से जंग के तबल और अफ्रीकी बड़ी बड़ी दफे पीटे जा रहे थे
उन दफों और तबल जंग की वजह से मैदान जंग में हर तरफ एक शोर उठ खड़ा हुआ था। इसी शोर में सुल्तान रुकनुद्दीन की गर्दन झुकी, फिर उसका चेहरा अपने घोड़े की जेन के आहने पर टंग गया और इंतहाई आजिज़ी और दर्दमंदी में वो अपने रब से दुआएं मांग रहा था। दुआ मांगने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन अपने घोड़े पर सीधा होकर बैठ गया था और उसकी निगाहें हरकत में आते दुश्मन के लश्कर पर जमकर रह गई थी। उसके दाएं बाएं अमीर सैफुद्दीन और तुनिताई भी बड़े मुस्तैद थे और बड़े गौर से दुश्मन की नकल हरकत पर निगाह रखे हुए थे। दूसरी जानिब नोबा के हुक्मरान ड्यूट के लश्कर में एक अजीब तरह का जोश और वलवला पाया जाता था। सुल्तान रुकनुद्दीन की गैर मौजूदगी में सुल्तान के इलाकों में घुसकर जो उन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई थी, वो किसी ने उनकी राह ना रोकी थी। इस बिना पर उनके हौसले और वलवले बेहद बढ़ गए थे। उन्हीं वलवलों में नोबा के हुक्मरान ड्यूट ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया और उसका यह हुक्म पाते उसका लश्कर खुरोश के बेकिनार समुंदर की तरह आगे बढ़ गया था। नोबा के हुक्मरान के मुकाबले में सुल्तान ने अपने जंग का लाए अमल बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उन्होंने अपने आप को दिफा तक महदूद नहीं रखा, बल्कि जो ही ड्यूट अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ हमलावर हुआ, सुल्तान ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद करना शुरू की, जो सैफुद्दीन और तुनिता की तरफ इशारा था कि शुरू ही में दुश्मन पर जोरदार हमले करते हुए उसे हिला कर रख देना। तकबीरें बुलंद करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर को बेसुतूत और बेतंग और नाम दरिया की तरह आगे बढ़ा रहा था। सुल्तान रुकनुद्दीन के हमलावर होने के बाद सैफुद्दीन हरकत में आया और दाएं बाएं जानिब से अपने हिस्से के लश्कर के साथ उसने भी तेजी के साथ हमले शुरू कर दिए थे। अमीर सैफुद्दीन के साथ साथ ही अमीर तुनिताई ने भी बाएं पहलू पर से भी जो है दुश्मन पर तेज हमले शुरू कर दिए थे। दोनों लश्करों की यूं सहरा हिस्से में टकराने के बायस मैदान जंग रेजा रेजा होकर बिखरे अंधेरों की हिसार, बेताब रूहों की पुकार जैसा हो गया था। अपने जवाबी हमले में जब सुल्तान रुकनुद्दीन, अमीर सैफुद्दीन और अमीर तुनिता ने दुश्मन के लश्करों में उसकी लाशों के ढेर और अंबार लगाना शुरू कर दिए, तब ड्यूट के लश्करी जिनके हौसले मुसलमानों के इलाकों में बेरोक टोक बढ़ने और तबाही फैलाने की वजह से खूब बुलंद हो चुके थे, उनके अंदर खशखशी पैदा हो गई थी। जब सुल्तान के लश्करों का डर उनके अंदर बैठ गया तो सुल्तान के लश्करी पिछली सफ़ों से निकलकर अगली सफ़ों की तरफ आने में इंतहा बेताबी और तेजी का मुजाहरा कर रहे थे और ये बात ड्यूट के लश्करियों को हौसला शिकन करने के लिए काफ़ी थी। सुल्तान रुकनुद्दीन की जुनूबी सहराई हिस्सों के अंदर हौलनाक जंग हुई और इस जंग में नोबा के हुक्मरान ड्यूट को बदतरीन शिकस्त हुई। अपने लश्कर के साथ वो भाग खड़ा हुआ, लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन उसे यूं बचकर भाग जाने देने वाला ना था। लिहाजा पूरी ताकत और कुव्वत के साथ सुल्तान ने ड्यूट का ताक़ुब किया। सुल्तान रुकनुद्दीन के हाथों इबरत खेज शिकस्त खाने के बाद नोबा का ईसाई हुक्मरान ड्यूट अपने दूसरे बड़े शहर दंकला की तरफ भाग उठा। सुल्तान ताक़ुब करता हुआ उसके पीछे पीछे था। अब सूरत हाल ये थी कि अपनी सल्तनत से निकलकर सुल्तान ड्यूट की सल्तनत में दाखिल हो चुका था और जिस सीमत आगे आगे भागता हुआ ड्यूट जा रहा था, रास्ते में पड़े वाले हर शय को सुल्तान तेजी आंधी और ना रुकने वाले तूफान की तरह रोनता चला जा रहा था, यहाँ तक कि सुल्तान के आगे आगे भागता हुआ ड्यूट नकला शहर में महसूर हो गया। सुल्तान भी उसके पीछे पीछे दंकला पहुंच गया, लेकिन उस वक्त तक ड्यूट ने शहर पनाह के दरवाजे बंद करके अपने आप को महसूर कर लिया था। इस बिना पर सुल्तान ने अपने लश्कर को दुश्मन की सल्तनत के अंदर दंकला शहर से बाहर पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। यह सुल्तान की तरफ से बड़ी जुर्रतमंदी, दिलेरी और बेखौफी का मुजाहरा था। वो अपनी हुदूद से निकलकर आयन दुश्मन की सल्तनत के वस्त में उससे नबर्द आजमा हो रहा था। जिस वक्त सुल्तान के लश्कर का पड़ाव हो चुका, तब सुल्तान ने अपने खीमे के सामने एक खुली जगह पर सैफुद्दीन, तुर्निताई और दीगर सालारों को बुलाया। जब वो सुल्तान के पास आए तो सुल्तान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर अपने सारे सालारों को उसने मुखातिब किया। मेरे रफीकों, मेरे अजीजों, पहले तो मैं तुम सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमने ड्यूट को बदतरीन शिकस्त दी और मैं तुम सब का शुक्रगुजार भी हूं कि ड्यूट को शिकस्त देने में तुम सब ने अपनी कार्रवाइयों और अपने हमलों को अपनी रूज पर रखा। अब सूरत हाल है कि ड्यूट अपने दूसरे बड़े शहर दंकला में महसूर हो चुका है, लेकिन हमने उसे बाहर निकालकर हर सूरत में उसे बहुत खेल सबक देना है। मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि ड्यूट को जिंदा गिरफ्तार करूंगा और उसे बास पुरुष करूंगा कि मेरी गैर मौजूदगी में वो क्यों मेरी सल्तनत पर हमलावर होने की जुर्रत और जसारत कर गया। तुम सब से भी यही कहूंगा कि अगर तुम में से किसी का टकराव बराह रास्त ड्यूट से हो तो उसे कत्ल ना किया जाए, बल्कि जिंदा गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। मेरे साथियों, शाम तक लश्करियों को आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम करो ताहम लश्कर एक हिस्सा मुस्तैद रहे, इसलिए कि हो सकता है दंकला शहर के अंदर ड्यूट को कोई ताज़ा दम लश्कर मुहैया हो जाए और वो शहर से बाहर निकलकर अचानक हम पर हमलावर होने की कोशिश करे।
अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर रात के वक्त हम दंकला शहर पर हमलावर होंगे। यह हमला सिर्फ मैं और सैफुद्दीन करेंगे। रात की तारीकी में शहर पर हमलावर होते हुए हम शहर की फसील पर कब्जा करने के बाद दोनों शहर में उतरेंगे और ड्यूट और उसके लश्करों से नबर्द आजमा होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं और सैफुद्दीन दोनों मिलकर दंकला शहर में ड्यूट और उसके लश्कर को बदतरीन शिकस्त देंगे। हमारे हाथों शिकस्त खाने के बाद जाहिर है कि ड्यूट दंकला शहर से निकलकर अपनी जान बचाने की खातिर भागेगा। फिर यह भी जाहिर है कि वो शुमाल की तरफ नहीं बल्कि जुनूब की तरफ भागेगा, इसलिए कि उसका मरकजी शहर यहाँ से जुनूब की तरफ है। मैं और सैफुद्दीन भी शहर से निकलकर उसके ताक़ुब में लग जाएंगे। तो नितय मेरे बेटे, तुम्हारा काम यह होगा कि जिस वक्त मैं और सैफुद्दीन रात की तारीकी में दंकला शहर में हमलावर होंगे, तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ दंकला शहर की जुनूब में किसी मुनासिब जगह घात में बैठ जाना। जब रात की तारीकी में हमारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद ड्यूट जुनूब की तरफ भागे, तब तुम उसकी राह रोक खड़े होना। इस तरह रात की तारीकी में जब सामने की तरफ से तुम पुष्ट की जानिब से मैं और सैफुद्दीन हमलावर होंगे, तो इस तरह ड्यूट के भागने की सारी राहें मुस्तैद हो जाएंगी और हम उसे जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। तुम सब अपने अपने लश्करों को भी ये अहकामात जारी कर दो, कोई भी जंग के दौरान ड्यूट को कत्ल ना करे, बस उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करे। जब सारे सालारों ने सुल्तान रुकनुद्दीन की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया, तब सुल्तान ने हुक्म दिया कि वापस अपने अपने लश्करों की तरफ चले जाए और लश्करों के आराम और उनके खाने पीने का भी इंतजाम करें। सब सालार सुल्तान के सामने से हट गए थे। उफक फैले अंधेरों की रात में सुल्तान और अमीर सैफुद्दीन फसील पर हमलावर हो गए थे। सुल्तान के अगले लश्कर के सिपाही ने दो दो ढालें संभाल रखी थी। एक एक ढाल उन्होंने अपनी छाती पर बांधी रखी थी, दूसरी ढाल उन्होंने अपने चेहरे के सामने कर रखी थी। उनके हाथों में तलवारें थी, जबकि उनके आड़ में पिछली सफों के लश्करी बड़ी तेजी से दंकला शहर की फसील पर तीर अंदाज करने लगे थे। रात की तारीकी में सुल्तान रुकनुद्दीन की यूं हमलावर होने से दंकला शहर के मुहाफिज घबरा उठे थे। जो तकबीरें बुलंद होती जा रही थी, उनकी जिगर छलनी होते जा रहे थे। उन्होंने ये ख्याल किया कि सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ शुमाल की तरफ से हमलावर हो चुका है, लिहाजा फसील के ऊपर उन्होंने अपनी कुव्वत का ज्यादा हिस्सा शुमाल की तरफ मुतयन कर दिया। लेकिन ये सुल्तान की चाल थी। जिस वक्त सुल्तान शुमाल की तरफ से हमलावर हुआ था, उसी वक्त बड़ी राजदारी से सैफुद्दीन मशरिकी सिंध से फसील के करीब गया। उसके लश्करों ने भी दो दो ढालें संभाल रखी थी, ताकि फसील के ऊपर से उन पर अगर तीर अंदाजी की जाए तो महफूज रहे। जबकि पिछली सफों ने अपनी कमानों में तीर जमाए रखे थे और तीरों की उस बारिश में अगली सफों के कुछ सिपाहियों ने फसील के ऊपर रस्सियों की सीढ़ियां फेंक दी थी। बस रस्सियों की सीढ़ियां फसील पर फेंकी जानी थी कि अमीर सैफुद्दीन के लश्करी शरारों की तरह दंकला शहर की फसील पर चढ़ना शुरू हो गए थे। फसील के ऊपर नोबा के हुक्मरान ड्यूट के लश्करों ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो फसील के ऊपर चढ़ने वाले मुसलमानों को किसी न किसी सूरत रोक दे, लेकिन उन्हें बुरी और पूरी तरह नाकामी हुई। अमीर सैफुद्दीन खुद और उसके लश्करी लम्हे के अंदर फसील पर चढ़ गए थे और फसील के छोटे से एक हिस्से पर जहां उन्होंने रस्सियों की सीढ़ियां फेंकी रखी थी, कब्जा करने के बाद दाएं बाएं से हमलावर होते दंकला शहर के मुहाफिजों को रोक दिया था। इतनी देर तक अमीर सैफुद्दीन का सारा लश्कर फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया था और वो दाएं बाएं फसील पर फैलना शुरू हो गए थे। फसील के ऊपर शहर के अंदर आनंद के आन में यह खबर फैल गई कि सुल्तान रुकनुद्दीन का सिपह सालार आला सैफुद्दीन दंकला शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया है। ये खबर उड़ते ही फसील के ऊपर से सारे लश्करी सैफुद्दीन पर हमलावर होने के लिए लपके थे। कब इसके कि दंकला शहर का सारा मुहाफिज लश्कर सैफुद्दीन पर टूट पड़ता। सैफुद्दीन ने उस सिंध के लश्कर को अपना हदफ बनाने का तहिया किया जो सुल्तान रुकनुद्दीन की तरफ से आ रहा था। उस सिंध के लश्कर पर अमीर सैफुद्दीन आफ्ताब के सीने की तरह हमलावर हो गया था। अपने तेज हमलों से सैफुद्दीन ने अपने सामने आने वाले दुश्मन को जानवरों की तरह हांकना शुरू कर दिया था। जितनी देर तक सैफुद्दीन के साथ दुश्मन पर जोर अंदाज में टकरा रहा था, इतनी देर तक सुल्तान रुकनुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ फसील पर चढ़ गया था। अब फसील पर दोनों तरफ से दुश्मन पर जरब लगनी पड़ी थी और लम्हा बलम्हा उसकी ताकत कम होती जा रही थी। फसील के ऊपर काफी देर तक जंग जारी रही, यहाँ तक कि फसील के ऊपर जिस कदर नोबा के हुक्मरान ड्यूट के मुहाफिज थे, उन सब का सुल्तान और अमीर सैफुद्दीन ने किला कम कर दिया था। फिर दोनों अपने मुत्तहद लश्कर को लेकर शहर में उतर गए थे और शहर के अंदर जो मुहाफिज लश्कर था उससे टकरा गए थे। दोनों लश्करियों के शहर के अंदर टकराव के बायस रात की तारीकी में ऐसा महसूस होने लगा था जैसे शहर में बहारों खजा एक दूसरे से बरसरे पैकार हो गए हो, जैसे आग और पानी का मेलाप होने लगा हो, जैसे रोशनी और तीरकी एक दूसरे से दस्त और गिरेबां होना शुरू हो गए हो और आंधियों के जद में गहरे खावले बिल्कुल तड़प गए हों। सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन ड्यूट के एक बड़े लश्कर को फसील के ऊपर पहले ही तहे तेग कर चुके थे
और लश्कर का वो हिस्सा जो शहर के अंदर मौजूद था वो ज्यादा देर तक सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन का सामना ना कर सका। रात की तारीकी में ड्यूट ने जब ये अंदाजा लगाया कि अगर वो मजीद मज़ाहमत करता है तो उसके सारे के सारे लश्कर को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लिहाजा इस खतरे को सामने रखते हुए उसने अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर और शहर के जुनूबी रास्ते से निकलकर वो जुनूब में अपने मरकजी शहर की तरफ भागा था। लेकिन लगता था किस्मत और मुकद्दर उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए कि दकला शहर से थोड़ी ही फासले पर तुर निताई अपने लश्कर के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए घात लगाए बैठा था। मशरिक में अभी सुबह के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। डूट अपने लश्कर के साथ दकला शहर से लगभग 2 मील के फासले पर गया होगा कि एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तुर निताई अपने हिस्से के लश्कर के साथ फितरत के जबर की तरह उस पर टूट पड़ा था। दोनों लश्करों में खौफनाक जंग हुई। तुर निताई ने उसके लश्करों को काट कर रख दी थी। इतनी देर तक पुष्ट की जानिब से सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन भी हमलावर हो गए थे। यूं इस तरह दो तरफा हमलों से सुबह होने तक ड्यूट के लश्कर की हालत चेहरों के तरसते आईनों की तरह हो गई थी। ड्यूट ज्यादा देर तक सुल्तान सैफुद्दीन तुर निताई का सामना न कर सका। उसके साथ जिस कदर लश्कर था उसमें से आधे को मौत के घाट उतार दिया गया, बाकी आधा लश्कर असीर बना लिया गया। ड्यूट को भी जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त सूरज तुलू हुआ और सुल्तान के लश्कर ने पड़ाव कर लिया, तब नौबत के हुक्मरान ड्यूट को सुल्तान के सामने पेश किया गया। उस वक्त सुल्तान के पास सैफुद्दीन तुर निताई के अलावा दीगर सालार भी बैठे हुए थे। जिस वक्त नौबा के ईसाई हुक्मरान ड्यूट को सुल्तान के सामने पेश किया गया, उस वक्त उसके हाथ उसके पुष्ट पर बंधे हुए थे। सुल्तान के सामने आने के बाद ड्यूट इंतहाई शर्मसारी में अपनी गर्दन को झुकाते हुए सुल्तान के सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा हो गया था। सुल्तान रुकनुद्दीन थोड़ी देर तक बड़े गौर से ड्यूट की तरफ देखता रहा, फिर उसने उन मुहाफिजों को मुखातिब किया, इसके पुष्ट पर बंधे हुए हाथ खोल दो ताकि मैं जब इससे मुखातिब हूं तो यह आसानी से मेरी गुफ्तगू का जवाब दे सके। सुल्तान का हुक्म सुनते ही एक मुहाफिज आगे बढ़ा और उसने ड्यूट की पुष्ट पर बंधे हुए हाथ खोल दिए थे। सुल्तान के इस हुक्म पर ड्यूट ने शुक्रगुजार अंदाज में सुल्तान की तरफ देखा। उसके बाद उसकी गर्दन फिर झुक गई थी। इस मौके पर सुल्तान ने उसे मुखातिब किया, ड्यूट क्या तू तस्लीम करता है कि तेरे साथ टकराव में हमने तेरे दिल की बस्ती को वीरान कर दिया है? इस मौके पर ड्यूट ने अपनी गर्दन सीधी की, बड़ी शर्मिंदगी से सुल्तान की तरफ देखा, फिर उसकी डूबी डूबी से आवाज बुलंद हुई, सुल्तान मैं आपके सामने अपनी शिकस्त अपनी नाकामी को तस्लीम करता हूँ। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि आप और आपके लश्करी वो आंधी है जो ना थमने वाला तूफान है। सुल्तान ने फिर ड्यूट की माफी मांगने पर मुखातिब किया, माजी में तुम अपनी सरहदों के अंदर रहकर पुरअमन दिन गुजारते रहे, ये कहो तुम्हें किसने हमारे खिलाफ हथियार उठाने के लिए अंगेख्त दी? सुल्तान रुकनुद्दीन की सवाल पर ड्यूट ने अजीब सी बेबसी में थोड़ी देर के लिए सुल्तान की तरफ देखा, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, सुल्तान आप इस बात को तस्लीम करेंगे एक हमसाए की हैसियत से मैं हमेशा आपके सामने दब कर रहा, कभी आपके खिलाफ मैंने तलवार बेनियाम करने की जरूरत नहीं की, लेकिन बुरा हो बहरीजुम के किनारे नसरानी किलों का कि उनके हुक्मरानों ने पैदर पे मेरी तरफ पैगाम भिजवाए और मुझे आपकी सरजमीन पर हमलावर होने का मशवरा दिया। उन्होंने यहाँ तक इक्तिफा नहीं किया कि उन्होंने पाए आजम क्लीमेंट की तरफ से भी पैगाम भिजवाया और एक कासिद पाए रूम की तरफ से आया और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से सुल्तान की ममलिकत पर हमलावर हो जाऊं। सबका यह ख्याल था कि आप जब शुमाली कुव्वतों से नबर्द आजमा होंगे और मैं पुष्ट की तरफ से हमलावर हो जाऊंगा तो सुल्तान दो तरफा हमलों के खातिर जवाब नहीं दे सकेगा और नसरानी दुनिया के सामने दबने पर मजबूर होगा और उससे मन मानी शराइत मनवाई जा सकेगी। लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर कोई ऐसी नसरानी ताकत और कुव्वत नहीं है जो आपको अपने सामने जेर कर सके। सुल्तान मैं आप और आपके लश्करों की शुजाअत दिलेरी बेबाकी को सलाम करता हूँ और आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ किया जाए। आइंदा मैं हमेशा के लिए जब तक जिंदा रहा आपका मुती और फरमाबरदार बनकर रहूंगा। यहाँ तक कहने के बाद ड्यूट खामोश हो गया। उसकी गुफ्तगू के सामने सुल्तान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। उसने अपने पहलू में बैठे सैफुद्दीन तुर निताई के साथ राजदाराना अंदाज में मशवरा किया। उसके बाद सुल्तान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और ड्यूट को सुल्तान ने फिर मुखातिब किया, ड्यूट मैं जिसका अब्द हूँ वो बड़ा रहमान बड़ा रहीम है, मैं जिसका बंदा हूँ वो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, क्योंकि वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लिहाजा उसकी इन सिफात के सदके ड्यूट मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। पर याद रखो आइंदा अगर तुमने मेरे खिलाफ हथियार उठाने की कोशिश की या मेरे हुदूद के अंदर घुस कर यलगार और तरकताज करना चाहिए या अपनी कुव्वत को मजीद मुस्तहकम करते हुए मेरे लिए खतरात खड़े करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तेरे मुल्क में ऐसा घुसूंगा फिर यहाँ से निकलूंगा नहीं और उसे अपनी ममलिकत में शामिल करके रहूंगा।
अब तुम जा सकते हो। माफ किए जाने पर ड्यूट बेहद खुश था। शुक्रगुजार निगाहों से उसने सुल्तान की तरफ देखा, फिर भरी हुई उससे आवाज सुनाई दी, सुल्तान, जब तक मैं जिंदा रहूंगा हमेशा आपका ममनून और शुक्रगुजार रहूंगा। कसम यूसुफ मसीह की, अगर आइंदा मुझे किसी कुव्वत से जंग करना पड़ी तो मैं उस कुव्वत से जंग करूंगा जो आपके दुश्मन बनकर नमूदार होगी। एक बार फिर आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपकी सरहम दिली पर सलाम करता हूँ। इसके साथ ही ड्यूट वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद ड्यूट अपने बच्चे को लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर की तरफ कूच कर गया था, जबकि सुल्तान ने भी अपना पड़ाव उठाया, फिर वो काहिरा की तरफ कूच कर गया था। काहिरा शहर की हालत आज अक्स दर अक्स नगमात के सदर बिछोने रंगीन आंचल की तरह हो गई थी। और आज रुदा से अमीर तुनिता की शादी का दिन था। शहर की गलियां, कोचे, लब और रुखसार सजाए गए थे। बड़ी धूमधाम से लोग खुशियां मना रहे थे। शाम से थोड़ी देर पहले सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन, दिगर सालार और सारे उलमा, काजी और दिगर मुअज्जिज़ीन शहर की मौजूदगी में अमीर तुनिताई और रुदा का निकाह पढ़ा दिया गया। सुल्तान रुकनुद्दीन ने तुनिताई को अपनी बेटे की हैसियत से जहां बहुत से कीमती और अनगिनत तोहफ़े से नवाजा, वहां तुनिताई और रुदा दोनों मियाँ बीवी के लिए सुल्तान ने एक शाही बग्गी भी मुहैया की थी। सैफुद्दीन और शहर के दिगर मुअज्जिज़ीन मेहमानों की तरफ से भी दोनों मियाँ बीवी के लिए बेशुमार तोहफ़े पेश किए गए। सूरज गुरूब होने के थोड़ी देर बाद जब सारे मेहमान उलियास की हवेली से रुखसत हो गए, तब उलियास, आमू, सफ्तुना, समीर, तुनिता और रुदा को लेकर अपनी हवेली के दीवान खाने में आए। इससे पहले उलियास, आमू, सफ्तुना और समीर आपस में कुछ सुलह मशवरा कर चुके थे। जिस वक्त वो सब दीवान खाने में दाखिल हुए तो उलियास ने तुनिता और रुदा दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों, ये सामने वाली नशिस्त पर बैठो, मैं तुम दोनों से एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अमीर तुनिता फौरन एक नशिस्त पर बैठ गया, जबकि रुदा जरा फासले पर हट कर बैठ गई थी। इस मौके पर उलियास के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार। फिर उसने रुदा को मुखातिब करके कहा, रुदा मेरी बेटी, अब तू अमीर तुनिता की बीवी है, इसके साथ ही इसकी रफीक है। तू तो बिल्कुल ही अजनबियों की तरह पीछे हटकर बैठ गई है। मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों एक साथ एक जहाँ होकर मेरे सामने बैठो, ताकि जिस मौजू पर मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसकी इब्तिदा कर सकूँ। अपनी नाना उलियास की इस गुफ्तगू से हसीन और खूबसूरत रुदा शर्मा कर अमीर तुनिता के साथ बैठ गई थी। चूंकि जिंदगी में पहली बार वो सबकी मौजूदगी में यूं तुनिता के इस कदर करीब होकर बैठ गई थी, लिहाजा उसका शबाब में महकते फूल जैसा हो गया था। थोड़ी देर तक दीवान खाने में खामोश रहे। उसके बाद रुदा का नाना उलियास बोल पड़ा, रुदा मेरी बेटी, मैंने तेरी नानी सफ्तुना, तेरे बाप आमूज और भाई समीर के साथ मिलकर एक फैसला किया है और इस फैसले का आखिर और अंजाम हमने तुम पर छोड़ा है। इसके साथ ही टीन की एक खोल के अंदर से उलियास ने 2 कागज निकाले और बारी बारी उन्हें खोलते हुए उसने रुदा के सामने रख दिए। साथ ही उसने रुदा को मुखातिब भी किया, रुदा मेरी बेटी, ये तेरे सामने 2 कागज पड़े हैं। ये दो वसीयतें हैं। एक कागज पर लिखी वसीयत मेरी तरफ से और दूसरा कागज पर जो वसीयत है वो तेरे बाप आमूस की तरफ से है। सुन मेरी बेटी, जो वसीयत मेरी तरफ से है तेरे नाम है, उसमें मैंने अपने ये हवेली और काहिरा शहर में जो मेरी तिजारत का कारोबार है वो मैंने तेरे और अमीर तुनिता के नाम कर दिया है। दूसरी वसीयत तेरे बाप की तरफ से, इसमें उसने सूसा शहर के अंदर जो इसकी हवेली, जमीन और बागात है वो तेरे नाम किए हैं। बेटे, फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। तुम इन दोनों में से किसी एक को कबूल कर लो। चाहे तो मेरी हवेली और मेरा जो तिजारत का कारोबार है उसे पसंद कर लो, चाहे सूसा में अपने बाप की हवेली, बागात और जमीन लेना पसंद कर लो। दोनों में से एक चीज तुम ले सकती हो और दूसरी वसीयत फाड़ने के बाद वो सारा कारोबार हम तेरे भाई समीर को कर देंगे। यहाँ तक कहने के बाद बूढ़ा उलियास जब खामोश हुआ तो रुदा ने अपने हाथ बढ़ाए, दोनों कागज उठाकर उसने बारी बारी पढ़े। फिर दोनों कागज उसने अपने पहलू में बैठे तुनिता की तरफ बढ़ाए और सवालिया जवाब तलब निगाहों से उसने उसकी तरफ देखने लगी थी। तुनिता ने वसीयत के दोनों कागज लिए, पहले गौर से उन दोनों कागजों को पढ़ा, फिर उन दोनों कागजों को यकजा किया और उन्हें फाड़कर उन दोनों कागजों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुनिता की इस हरकत पर जहां उलियास, आमू, सफ्तुना और समीर हैरत ज़दा थे, वहां रुदा भी तुनिता की तरफ बड़े परेशान कुन अंदाज में देख ही रही थी। इस मौके पर दीवान खाने में तुनिता की आवाज़ गूंज गई, उलियास मेरे बुजुर्ग, ये दोनों वसीयतनामे लिखकर आपने अपनी तरफ से रुदा से मोहब्बत और चाहत का इजहार किया था। इसके लिए मैं आपका इंतहा दर्जे का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। बुजुर्ग उलियास, आप जानते मैं एक गुलाम था, एक हाथ से दूसरा हाथ, एक जगह से दूसरी जगह बिकता रहा, कोई मेरा करीबी अजीज रिश्तेदार भी नहीं था। मेरी जिंदगी ऐसे माहौल में गहरी तारीख जुल्मत से मुख्तलिफ न थी। आपने रुदा को मुझे देकर सुबह नूर की बशारत दी है। बुजुर्ग उलियास, मैं रातों की जुल्मत में हयूलों की तरह जमीन पर लेटा रहता था। अब रुदा से शादी होने के बाद मैं अपने साथ किसी साथी को महसूस कर रहा हूँ। जवाब में मेरी बीवी है,
रुदा जो अब भी मेरी बीवी है, मेरी जिंदगी का साथी है। रुदा शादी के बाद अब मेरी रूह के असीर और आसूदगी का इल्म है। मैं इसे अपने साथ मोहब्बत का वकार ज़ाब्तों के साथ रखना चाहता हूँ। अब जबकि आप इसे मेरे हवाले कर चुके हैं, मेरी जिंदगी के साथी मेरी बीवी बन चुकी है, तो जो कुछ आपके पास है उस पर रुदा का कोई हक तस्लीम नहीं करता। उलियास मेरे बुजुर्ग रुदा की माँ बाप की बेटी है और उसका बेटा आपका नवासा समीर मौजूद है। जो कुछ आपके पास मौजूद है या जो कुछ रुदा के बाप के पास है उसका वाहिद मालिक और वारिस समीर है। इसमें कोई शक नहीं कि शादी से पहले रुदा इन सब अशिया पर मुमलिकत रखती थी, लेकिन अब नहीं। अब ये तुर्निताई की बीवी है। जो कुछ तुर्निताई के पास है अब इसी की ये मालिक है। लिहाजा मैं आप या बुजुर्ग आमोस की तरफ से रुदा के लिए किसी भी चीज़ को कबूल करने से इनकार करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने वही वसाइल में रुदा को खुश और मुतमईन रखने में कामयाब रहूंगा। तुर्निताई की इस गुफ्तगू से रुदा अजीब से प्यार और चाहत भरे अंदाज में तुर्निताई की तरफ देखी जा रही थी। उसके चेहरे, उसके आंखें में अमीर तुर्निताई के लिए अजीब चाहत और तफाखुर भरे जज्बे थे। इस मौके पर रुदा का छोटा भाई समीर बोल पड़ा, तुर्निताई जो कुछ आपने कहा वो दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से अपने बाप या अपनी नाना की जायदाद में कुछ अपनी बहन रुदा के हक में दस्तबरार होकर जाऊं, तब तुर्निताई जो 2 वसीयतें लिखकर आप और रुदा के सामने पेश की गई थी उनमें से आप दोनों मिलकर अगर एक को कबूल कर लेते हैं तो यकीनन वो मेरी खुशी का बायस होता। इस पर तुर्निताई फौरन बोल पड़ा, समीर मेरे भाई, मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अपने बाप और नाना की तुम वाहिद वारिस हो। मेरे भाई, रुदा अब अपने घर में रहेगी और मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुर्निताई की हवेली में इसे किसी शय की कमी महसूस नहीं होगी। इस मौके पर सफ्तूना बोल पड़ी, तुर्निताई मेरे बेटे, तुमने जो खुलूस और बेगर्जी का मुजाहरा किया है, मेरे बेटे ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश और बेइत्तेफाक रहो। मेरे बेटे, मेरी उलियास आमोस समीर सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है। इसके साथ ही सफ्तूना ने आमोस की तरफ देखते हुए कहा, आमोस मेरे बेटे, बग्गी तैयार करो ताकि इसमें बैठकर रुदा और तुर्निताई दोनों मियाँ बीवी अपनी हवेली में जाएं। आमोस फौरन अपनी जगह पर उठा और बाहर निकल गया। समीर भी उसके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद आमोस लौटा और बग्गी तैयार होने की इत्तला दी, जिसे सुनते ही सफ्तूना और इलियास दोनों अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। फिर सफ्तूना ने तुर्निताई और रुदा की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, आओ। इसके साथ ही तुर्निताई और रुदा ने एक बार गहरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों उठ खड़े हुए। फिर वो पहलू ब पहलू चलते इलियास और सफ्तूना के पीछे हो लिए। जब वो सब हवेली से निकलकर बाहर आए तो 2 घोड़ों की बग्गी गली में खड़ी थी। ये वही बग्गी थी जो सुल्तान रुकनुद्दीन की तरफ से रुदा और तुर्निताई को तोहफे में दी गई थी। फिर सफ्तूना के कहने पर तुर्निताई और रुदा दोनों मियाँ बीवी बग्गी में बैठ गए। तुर्निताई ने बग्गी के घोड़े को हाँक दिया। यूं तुर्निताई और रुदा दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से अपनी हवेली की तरफ चल गए थे।